Good morning, students. In JK, today we will study about constitutional bodies of India. Have you heard about the Indian constitutional bodies? Let's learn more about them. Comptroller and Auditor General of India, full form of CAG. The office of the CAG has been created by the Constitution under Article 148. The Comptroller and Auditor General of India is appointed by the President of the country. CAG is the guardian of the public finance and controls the entire financial system of the country. It holds office for a term of 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. Understood, students? CAG, Comptroller and Auditor General of India, it means in Hindi we can say भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग का कार्यालय संविधान द्वारा आर्टिकल 148 के तहत इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? देश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कैग सार्वजनिक वित्त का संरक्षक है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। एंड इट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और टिल द एज ऑफ 65 year whichever is earlier। यह जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए कार्यालय जो है रखता है। नाउ अटॉर्नी जनरल, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिफाइंड under Article 76(1) of the Indian Constitution is the Indian government's chief legal advisor and its primary lawyer. In the Supreme Court of India, he is appointed by the President of India. He must have the same qualifications as required to be a judge of the Supreme Court. The Attorney General of India. अटॉर्नी जनरल भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के तहत परिभाषित भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसके प्राथमिक वकील हैं। एडवाइजर एंड इट्स प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके पास उतनी ही योग्यता होनी चाहिए जितनी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट जनरल, ईच स्टेट has an advocate general corresponding to the attorney general of India. The advocate general of the state is defined under article 165(1) of the Indian Constitution. He is appointed by the governor of the state. He must have the same qualification as required to be judge of the high court. Advocate general, it means महाधिवक्ता। प्रत्येक राज्य में भारत के अटॉर्नी जनरल के अनुरूप एक महाधिवक्ता होता है। राज्य के महाधिवक्ता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत परिभाषित किया गया है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। नाउ फाइनेंस कमीशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 of the Constitution, the Finance Commission is constituted by the President of India every 5 years. It consists of chairman and 4 other members. The main function of the Finance Commission is to make recommendations to the President about the financial matters of the country. Finance Commission, it means finance means वित्त। फाइनेंस मीन्स वित्त विभाग। सो वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें एक
इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। एक जो है चेयरमैन एंड 4 अन्य सदस्य शामिल होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य देश के वित्तीय मामलों के बारे में राष्ट्रपति को क्या करना होता है, सिफारिश करना होता है, सूचना देना होता है। और फाइनेंस कमीशन इज टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द country. Election Commission to conduct fair and impartial elections. The Constitution provides for an independent body in the form of Election Commission. Defined in Article 324, it consists of Chief Election Commissioner and 2 other election commissioners. The President determines the number of election commissioners. The working tenure of the election commissioner is of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान निर्वाचन आयोग के रूप में एक स्वतंत्र निकाय का प्रावधान करता है, जिसे आर्टिकल 324 में परिभाषित किया गया है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल है, ताकि देश में जो है क्या हो, जो चुनाव हैं वे बहुत अच्छे तरीक़े से क्या हो जाए, इलेक्टेड। जो भी चुनाव प्रणाली है वह उसमें किसी प्रकार से धांधली ना हो सके, और जो भी नेता या प्रतिनिधि चुन के आए वे क्या हो, सही तरीके से, सही जो चयन का तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके लिए जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है। और क्या होता है, द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। इसमें राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान का है ना, इसके अनुसार से क्या होता है, ये इसके आधार पर ही इनकी जो है सेवा समाप्त की जाती है, या फिर उसके आधार पर जो है इनको सेवा मुक्त किया जाता है। 6 वर्ष या फिर यदि 6 वर्ष से पहले 65 ईयर यदि पूरा हो जाता है तो वहाँ तक इनका कार्यकाल जो समाप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। Article 315 of the Indian Constitution defines the Public Service Commission. The Constitution has provided for Union Public Service Commission, it means UPSC, at the center, and a Public Service Commission at the state level. The appointment of the chairman and members of the commission is made by the president in case of UPSC, and a joint commission and government of the state in case of State Public Service Commission, SPSC. It means Public Service Commission. What is it? भारतीय संविधान का लोक सेवा आयोग। पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स लोक सेवा आयोग को कौन सा आर्टिकल परिभाषित करता है? आर्टिकल अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग को परिभाषित करता है, अर्थात उसके बारे में बताता है। संविधान ने केंद्र और राज्य स्तर पर एक लोक सेवा आयोग के लिए संघ लोक सेवा आयोग, इट्स मीन्स यूपीएससी के लिए प्रावधान किया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी और एक संयुक्त आयोग और राज्यपाल के मामले में की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के मामले में राज्य का उसमें जो है क्या होता है, एक अहम भूमिका होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। So student, create some one-liner question answer from this chapter and know about these topics more. Okay, so read and create some question answer from this chapter. Okay students.